So today we are getting started with our concept of NumPy in Python. Okay, आज का जो हमारा सेशन है ये आपका रहेगा हाउ टू मेक अ यूज ऑफ एरेज इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग। और उसके लिए अगर आपको एरेज यूज करना है तो आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है एंड द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल इज NumPy. So these are the topics which we will be covering today. NumPy mathematical library in Python, dimensions of array, array operations. We will be creating a rank 2 array, means we are going to create a 2-dimensional array. Create NumPy array of 3 by 3 with all zeros. We will be creating a 2 by 2 matrix with all ones, 3 by 3 matrix with constant values, and 3 by 3 matrix with random values. So these are the topics which we will be covering today. So first of all, we are getting started with our NumPy. What exactly a NumPy is? So let's say यहाँ पर आपके NumPy का एक definition लिखी हुई है कि NumPy actually stands for your numerical Python, and it is a library consisting of your multi-dimensional array object and a collection of routines for processing those arrays. Let's say अगर आपको arrays के अंदर कुछ task perform करें, you want to find the minimum, you want to find the maximum, आपको array 2 by 2 का बनाना है, तो you can make a use of this NumPy module. Okay, तो using NumPy, mathematical and logical operation on arrays can be performed. कैसे? जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का आपने कई बार प्रोग्राम सुना होगा. You have to calculate the addition of two matrices, multiplication of two matrices. These types of scenarios, or let's say these type of operations, are possible through this NumPy. The most important object defined in NumPy is an n-dimensional array type. Okay, जो आप एलिमेंट स्टोर कराते हो NumPy array के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? n-dimensional array. But this ND array will do, it describes the collection of items of the same type. Array की definition क्या होती है? Arrays की collection of similar type. Okay, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो आपका n-dimensional array है, it describes the collection of items of the same type. Items in the collection can be accessed using a zero-based index. तो array का आपका जो first element होता है वो कहाँ पर जाकर सेव होता है? On a zeroth index. Next क्या होता है कि every item in n-dimensional array takes the same size of block in the memory. अगर आपने integer declare किया है तो integer let's अगर 4 byte ले रहा है या 2 byte ले रहा है, तो जो उसका next block होगा वो भी कितना byte लेगा? 2 or 4 byte. Okay, each element in ND array is an object of data type, object called D type. तो ND array किसे कहते हैं? Collection of elements of similar type. और उस ND array के अंदर जो आप items डालोगे उनका क्या object होता है? D type. ये पता लग जाएगा आपको जब अभी हम execute करके देखेंगे कि ये D type क्या और ये ND array क्या है. So in order to make a use of this NumPy, first of all, you have to import its module. आपको इसका एक import मॉड्यूल को import कराना पड़ता है. तो here first of all I am going to write this statement, import NumPy as NP. Okay, first of all you have to import this module. जैसे जावा के अंदर आप इनपुट लेते हो स्कैनर क्लास से, तो स्कैनर क्लास का आपको पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है. सेम यहाँ पर इन पैकेजेस नहीं बोलते, यहाँ पर इनको एग्जैक्टली बोलते हैं मॉड्यूल्स. और मॉड्यूल्स एग्जैक्टली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड कलेक्शंस ऑफ योर फंक्शंस. ओके, और यहाँ पर ये एज और एनपी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बना लिया, या लेट्स आप कह सकते हो कि मैंने इसका एक एलियास बना लिया. एलियास का मतलब क्या होता है? उपनाम. सेम नेम मतलब उपनाम आपने दे दिया, उर्फ जिसे कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब जब भी आप एनपी यूज करोगे तो नाउ दिस एनपी कैन एक्सेस ऑल द फंक्शंस डिक्लेयर्ड विद इन योर NumPy मॉड्यूल. ओके, चलो, तो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पर एक हम बना रहे हैं 1-dimensional array, तो जिसको लेट्स से मैं ये भी कह सकता हूँ rank 1 array. पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके मल्टी-डायमेंशनल array को rank 1 array बोला जाता है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ अभी ARR के नाम से, शॉर्ट फॉर्म फॉर माई array, and with the help of this NumPy I am going to create an array. Now let's say in order to create an array in your Python programming, you have to make a use of this NP. और NP आपको एक function provide कराता है, and the name of that function is array. Okay, this will going to create an array for you.
तो एरे एक फंक्शन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आप पैरेंथेसिस में लिखना, और आप एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हो, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो विद इन दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स and specify some elements over here. 1 2 3 4 5 6 7. These are the elements which I am going to insert on my array. Now here I am going to make a use of this print and I want to print this array. So मेरे array का नाम यहाँ पर क्या है अभी, ARR. So I am going to run this cell. So you will going to get your array element 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Now here I am going to check the type of this array. तो मैंने यहाँ पे लिखा type और यहाँ पर मैंने पास कर दिया ARR. I am going to run this cell and this time you can see that we are going to get this ND array. और ND array मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, n dimensional array, जो बताता है कि it is a collection of elements of similar type. सो लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एरे है ये किस टाइप का है, तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ARR और मैंने यहाँ पर एक 0th इंडेक्स पास कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है. सो व्हेन आई रन दिस सेल विल गेट अवर आउटपुट numpy डॉट इंटीजर 32. अब आप इंडेक्स एरे को इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग भी प्रिंट कर सकते हो. तो यहाँ पर लेट्स से अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ARR ऑफ 0 एंड इफ आई रन दिस सेल you will going to get the value as 1. So let's say if you want to print the element of this array with the help of your for loop, एक पे नॉर्मल अप्रोच बताता हूँ और फिर इसके इंडेक्स के बेसिस पे भी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा के देखते हैं. सो सबसे पहले अगर मैं कोई नॉर्मल अप्रोच यूज करूँ तो मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर आइटम इन एंड आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ माई एरे. ओके, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया प्रिंट आइटम्स का. सो इफ आई रन दिस सेल तो यहाँ पर अभी हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट किया यूजिंग फॉर लूप. और अगर आपको इंडेक्स के बेसिस पे करना हो तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर इंडेक्स इन. अब यहाँ पर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ रेंज, और रेंज में अब आप पास कर दोगे लेंथ, और लेंथ आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, योर एरे, जो भी आपके एरे का नेम. And here what you can do is you can make a use of a print index. Run this cell and you will going to get your output 0 1 2 3 4 5 6 because array elements actually start from 0. तो यहाँ पर इस वाले for loop में यहाँ पर 0 क्यों नहीं आया, because it is going to print your items और ये items आपके print कर रहा है on index basis. और अगर आपको ऐसा कुछ प्रिंट करना हो कि एलिमेंट 0 मेरा ये है, एलिमेंट 1 मेरा ये है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास इंडेक्सेस प्रिंट होकर आ गए. सॉरी मैं इसको एक बार पहले 0 1 2 3 4 5 6. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय एरे और अब मैं इसके इंडेक्सेस को प्रिंट करता हूँ. व्हेन आई रन दिस सेल विल गेट अवर आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से एक और बात करते हैं और वो होता है आपका डायमेंशंस ऑफ एरे. ये डायमेंशंस ऑफ एरे क्या बताता है, इट एग्जैक्टली टेल्स यू द शेप ऑफ योर एरे. फॉर अ 1D एरे द शेप वुड बी n. 1D एरे के लिए क्या शेप रहेगी आपकी n, और जहां पर n क्या बताएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर एरे. फॉर अ 2D एरे द शेप वुड बी n, m, वेयर n is the number of rows and m is the number of columns in your array. तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि the shape attribute for numpy array returns the dimensions of your array. Suppose करो आपके पास एक array है y. If y has n rows and m column, then y dot shape is n, m. So ये जो मेरा अभी array है ये one dimensional array है ARR. So what I am going to do is मैंने यहाँ पे लिखा ARR dot shape. आप यहाँ पर एक बार लिखो ARR dot shape and run this cell. Shape is a function which is used to exactly define the dimensions here. तो यहाँ पर ये जो shape है ये exactly क्या बता रहा है कि आपके array के अंदर अभी currently कितने elements हैं. You have 7 elements in your array.
अब लेट्स से मेरे को एरे के इंडेक्स के आइटम को चेंज करना हो। सपोज करो अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट ARR, तो मेरे अभी एरे के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। What if I want to change the value of this one? तो here what you can do is आप यहाँ पर एरे दे दो, आप यहाँ पर एक इंडेक्स पास कर दो, लेट्स से कौन सा इंडेक्स 0, और इसकी वैल्यू मैंने अपडेट करा दी है 10। Now thereafter I am going to make a use of this print, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ARR। तो लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ 2-डायमेंशनल एरे। तो इसको मैं एक बार नाम देता हूँ यहाँ पर रैंक 2 एरे। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अपने एरे का नाम ले लिया 2D करके। वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ np डॉट एरे। एरे क्या बताया था मैंने आपको, फंक्शन, एंड विद इन दिस फंक्शन यू कैन स्पेसिफाई योर वैल्यूज व्हिच यू वांट टू इंसर्ट। लेट्स से मेरे को एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो कितने एलिमेंट्स मेरे को यहाँ पर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, 9 एलिमेंट्स। उन 9 एलिमेंट्स को आप किस तरीके से स्पेसिफाई करोगे, तो 3x3 की पहले आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बार बता सकते हो, कितने नंबर ऑफ इसके अंदर रोज आएंगी। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर एक नंबर ऑफ रो बना रहे थे, ये होगी मेरी पहली, ये होगी दूसरी, इस तरीके से, और फिर आपके कॉलम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, इंडेक्सेस की। अगर ये मेरा रो है, इसको मैं एक बार नाम देता हूँ रो, ये रो, इसका इंडेक्स कहाँ से जाएगा, 0 1 और आपका 2। इसी तरीके से लेट्स से इसको मैं नाम देती हूँ कॉलम 0 कॉलम 1 और यहाँ पर मैं देती हूँ कॉलम 2। तो यहाँ पर इंडेक्स आपको क्या जाएगा, रो का 0 कॉलम का 0, तो यहाँ पर आप टू राइट 0 बाय 0, फिर यहाँ पर आएगा आपका 0 बाय 1। इस तरीके से आपके इंडेक्सेस बनेंगे। तो नाउ यू कैन सी दैट इन फर्स्ट रो वी कैन इंसर्ट ओनली 3 एलिमेंट्स। अगर आपका मैट्रिक्स का साइज क्या 3x3, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या काम किया, 1 2 3, तो मेरी पहली रो हो जाएगी 4। फिर मैंने यहाँ पर कॉमा दिया। अब दूसरी रो के अंदर मैं एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ 4 5 6, फिर कॉमा देके यहाँ पर 7 8 9। एंड इफ आई मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ आपका 2D रन दिस सेल, यहाँ पर भी एग्जैक्टली एक सिंटेक्स एरर है, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट, और विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको इसके फिर सब एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे। आप एक बार यूज करो स्क्वायर ब्रैकेट का, रन दिस सेल एंड यू विल गेट योर आउटपुट। तो ये आपको बता रहे एरे की रिप्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं, पहले रो पे, दूसरे रो पे और आपके थर्ड रो पे। नाउ हियर इफ यू मेक अ यूज ऑफ शेप, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक बार यूज कर लेता हूँ 2D डॉट शेप, एंड व्हेन आई रन दिस सेल, अब आप इसके यहाँ पर देख सकते हो शेप कितनी आ रही है, 3x3। तो 3x3 का आपका ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब लेटेस्ट से यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट 2D, एंड हियर यू कैन स्पेसिफाई योर इंडेक्सेस। कि लेट्स से मेरे को एक वैल्यू बताओ कि 2,3 पे कौन सी वैल्यू। सो इफ आई रन दिस सेल, ओके, ये 0 1 2 जा रहा है, तो मैंने 2/2 प्रिंट कराता हूँ 9। ओके, इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 है, ठीक है। तो 3 में अभी आपका आ गया था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये। सो लेट्स से यहाँ पर अगर आपको एलिमेंट को कुछ इस तरीके से प्रिंट करना हो, सो व्हाट यू कैन डू इज, ये मेरा 2D एरे है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट 2D, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एलिमेंट 0 1 पे ये वाला एलिमेंट आपके 0 2 पे ये। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लूप। तो मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया, मैंने ले लिया आई इन रेंज, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लेंथ, और लेंथ में किसकी पास करूँ यहाँ पर 2D की, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 2D। ये जो वाला आपका लूप है, इट विल गोइंग टू वर्क फॉर योर रोज, ये आपका कहाँ तक चलेगा, आपकी रोज के। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक और लूप चलाया फॉर j इन रेंज, इसको भी आपने कहाँ तक चलाया, लेंथ ऑफ
2d। ये आपका चलेगा नेक्स्ट वाला कॉलम्स के लिए। तो ये हो गया आपके लिए रोज और ये हो गया आपका कॉलम के लिए। देयर आफ्टर यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। इसका तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ आपका एलिमेंट, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर एक बार कॉमा यूज कर लिया, यहाँ पर मैंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी किसकी, आई की। फिर मैंने यहाँ पर कंकैटिनेशन एक बार परफॉर्म करा दी इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दोगे, आपके जेथ की। तो ऐसे मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया आपका जेथ, और यहाँ पर एक बार मैं करता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पर फाइनली अब आप क्या लिखोगे, 2d का आई और जेथ, ठीक है। तो 2d का आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक बार आई और जेथ। तो लेट्स से एक बार सेल कम कर लेते हैं, रन। तो अब आपके एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे हुए आ जाए, ठीक है। अब देखो नंपी एरेज ना आपको एक और सिनेरियो प्रोवाइड कराता है, और वो क्या होता है कि लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे एंड यू वांट टू फिल ऑल द वैल्यू ऑफ योर एरे विद जीरोस। आपको सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या वैल्यू डलवानी हो, जीरोस की। तो इस तरीके से भी आप है ना नंपी एरे को यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक बार आप आ जाओ, मेक अ यूज ऑफ एन एरे। ओके, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आपका एरे, स्पेसिफाई np जो आपने एज अ मॉड्यूल करा है, और यहाँ पर आपके ऐसे एक फंक्शन होता है जीरोस करके। तो यहाँ पर आप कर दो एक बार डॉट जीरोस। अब ये कि जीरोस एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके लिए एक एरे बना देगा और उस एरे की वैल्यूज को किससे फिल कर देगा, विद जीरोस। अब यहाँ पर आपको इसके पैरामीटर्स के अंदर ना साइज देना पड़ता है या आपको डायमेंशंस देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन दे दी 3x3, ठीक है ना, 3x3 स्क्वायर के अंदर आप दो इसकी डायमेंशंस एंड रन दिस सेल। तो यहाँ पर अभी आपके पास एक एरे आ जाएगा 3x3 का, और ये एरे आपका फिल होगा जीरो वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर अभी आपके पास एक एरे आ जाएगा दैट इज गोइंग टू फिल विद जीरोस। अब यहाँ पे लेट्स से एक और करते हैं कि मेरे को एक और एरे बनाना है एंड आई वांट टू फिल दैट एरे विद वंस। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है ARR इज इक्वल टू np डॉट वंस। ओके, इट इज गोइंग टू नाउ फिल योर एरे विद द वैल्यू ऑफ 1। और यहाँ पे लेट्स से मैंने अपना साइज दे दिया 2x2 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ प्रिंट का ARR, अब यहाँ पर एक और है कि लेट्स से आपने वन के साथ कर लिया, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ 3x3 एरे विद कांस्टेंट वैल्यू। आपके पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको 3x3 मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ फंक्शन नेम्ड एज फुल। तो मैंने यहाँ पे यूज किया ARR np डॉट फुल, बट दिस विल डू, दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ कांस्टेंट वैल्यू एरे फॉर यू। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप यूज कर लो np डॉट फुल। अब यहाँ पर इस फंक्शन में आपको दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा इसका डायमेंशन, और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी वो वैल्यू जिससे आपको इस एरे को पॉपुलेट करना। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 1 to 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी जिसको 1 to 1, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट ARR, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक एरे आ जाएगा फिल्ड विद कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर एक और लास्ट हमारे पास बचता है और वो है आपका क्रिएटिंग अ 3x3 एरे विद रैंडम वैल्यूज। आपको रैंडम वैल्यूज के साथ अगर कोई एरे जनरेट करना हो, ये सारे सिनेरियोस आप तब यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन, और आप चाहते हो कि मेरे एरे के अंदर इस तरीके से वैल्यूज आ जाए, वंस आ जाए या जीरोस आ जाए। कांस्टेंट में आप यहाँ पर np डॉट फुल का यूज करोगे। पहला आर्ग्यूमेंट आप भेज दोगे शेप, और सेकंड आर्ग्यूमेंट आप भेज दोगे वो वाली वैल्यू। अब यहाँ पर मैं आपको रैंडम का बताता हूँ। रैंडम के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट, देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज रैंडम। एक फंक्शन अवेलेबल है आपके पास और उस फंक्शन का नेम है रैंडम।
This random is actually available in your np.random. अब यहाँ पर एक्जैक्टली एक मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इसके बाद आपको दोबारा से इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा रैंडम। ये इसका एक सिंटेक्स है, np.random.random, इसको कहते हैं एक्जैक्टली आपके मेथड चेन। डन। अब आप यहाँ पर डायमेंशंस बता दो, और डायमेंशंस आपको बतानी पड़ती है, तो डायमेंशन मैंने बता दी 3x3। तो रन दिस सेल, you will going to get some random value, और ये जो random values आएंगी float representation में आएंगी। तो ये था अभी आपके np.random.random।